સુરતમાં 118 રત્ન કલાકારોના પીવાના પાણીમાં ઝેરી દવા નાખવાનો ભેદ ઉકેલવામાં આખરે કાપોદ્રા પોલીસને સફળતા મળી છે. પોલીસે આ ગૂંચવાયેલ કડીઓ ઉકેલી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આ મામલે આરોપી નિકુંજ દેવ મુરારી નામના ઈસમની ધરપકડ કરી છે, જે કારખાનામાં એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગમાં નોકરી કરતો હતો. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી અનબ ડાયમંડમાં પીવાના પાણીના ફિલ્ટરમાં કોઈ અજાણ્યા ઈસમ દ્વારા સેલ્ફોસ નામની ઝેરી દવાનું પાઉચ ભેળવી દેવામાં આવ્યું હતું. આ ઝેરી પાણી પીધા બાદ કારખાનામાં 118 રત્ન કલાકારોને સેલ્ફોસની અસર થઈ હતી, જેમાંથી 104 રત્ન કલાકારોને સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી હતી, જ્યારે હજુ 4 રત્ન કલાકારો આઈસીયુમાં અને 12 રત્ન કલાકારો ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા હતા. પોલીસે આ ઘટનાને રત્ન કલાકારોની સામૂહિક હત્યાના પ્રયાસ તરીકેનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. અનબ ડાયમંડ નામની હીરાની કંપનીમાં રત્ન કલાકારોની સામૂહિક હત્યાના ષડયંત્રના મામલે પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. આ કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 5 શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા હીરાના કારખાનાનું પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ રત્ન કલાકારોની યાદી બનાવીને પૂછપરછનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે જ્યાં પીવાના પાણીનું ફિલ્ટર રાખવામાં આવ્યું હતું તે જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા લગાવેલા નહોતા. પોલીસને એવી શંકા હતી કે આ કૃત્ય કારખાનાથી પરિચિત કોઈ વ્યક્તિ એટલે કે કારખાનામાં જ કોઈ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોઈ શકે. આથી પોલીસે એફએસએલ ટીમની મદદ લઈને અસરગ્રસ્ત 118 સહિત કારખાનામાં કામ કરતા તમામ રત્ન કલાકારોના નિવેદન નોંધવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસે અલગ અલગ 4 જેટલી ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં મેનેજરના ભાણિયા નિકુંજની હરકત શંકાસ્પદ લાગતા પોલીસે તેની પૂછપરછ કરી, જેમાં પોલીસને જાણવા મળ્યું કે નિકુંજને અનબ જેમ્સમાં નોકરી કરે છે અને તેને લક્ઝુરિયસ લાઈફનો શોખ હોવાથી તેને પોતાના મિત્ર પાસેથી 10 લાખ રૂપિયા ઉધાર લીધા હતા અને તે તેના મિત્ર સાથે ઓનલાઈન સેલિંગનું પણ કામ કરતો હતો. તેનો મિત્ર વિદેશ જવાનો હોવાથી તેને પોતાના રૂપિયાની માંગણી કરી હતી, જેથી રૂપિયા પરત ચૂકવી ન શકતા નિકુંજે આપઘાત કરવાનું વિચાર્યું હતું. તેને દુકાન પરથી દવાની પડીકી ખરીદી ફિલ્ટર પાસે જઈ આપઘાત કરવા માટે દવાની પડીકી ખોલી, પરંતુ હિંમત ના થતા આખરે દવાની પડીકી તેને ફિલ્ટરમાં નાખી દીધી હતી. આમ પોતે આપઘાત કરવાના પ્રયાસમાં અન્ય રત્ન કલાકારોના જીવ નિકુંજે જોખમમાં મૂક્યા હતા. દવાના પેકેટ પર લખેલ બેચ નંબર પર આ કેસ ઉકેલવામાં મહત્વની કડી સાબિત થયું. પોલીસે હાલ आरोपी निकुंज ની धरपकड़ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में अनब जेम्स में जो रत्न कलाकारों को पॉइजनिंग करने का जो केस हुआ था, उसमें हमने 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो रजिस्टर किया था, उसमें हमने मुख्य आरोपी जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने पकड़ लिया है. उसका नाम निकुंज हितेश भाई देव मुरारी है और घटना की वारदात ऐसी है कि इसने अपने एक फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे ईबे या इट्सी जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सेलिंग का काम करता था और इसके अपने फ्रेंड से काफी लोन हो गया था. इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था तो ये इसका फ्रेंड जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार पैसा लौटाने का और इसकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी लेविश थी. एक दो खर्च इसके ज्यादा थे जितनी इसकी आवक थी. इसकी सैलरी सिर्फ 21,000 रुपए थी. तो इसके उपलक्ष्य में इसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और इसने ये पैकेट जो सेल्फोस का पैकेट है ये 31 मार्च को कापोद्रा ही पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक जो रिटेल शॉप है वहां से इसने खरीदा और जब ये सेल्फोस का पैकेट फाड़ के अपना जान लेने के लिए पानी की टंकी के पास गया तो इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये डर गया और वहां पे लोगों की आवक काफी थी तो इसने डर के मारे वो छुपाने के लिए उस पैकेट को पानी में डाल दिया. पानी में डालने के बाद जब इसको रियलाइज हुआ 2-3-4 मिनट के बाद कि इससे बहुत लोग मर जाएंगे तो इसने खुद ही हंगामा स्टार्ट कर दिया कि पानी में जहर मिला है और यहाँ पे सेल्फोस का पाउडर मिला है. तो इसके बेसिस पे हमने इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और इसकी धरपकड़ की है. इस केस को अंजाम मतलब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत मेहनत की है. हमने 2 इंस्पेक्टर्स से लेते हुए करीबन 4 टीम बनाई और अलग अलग टीम से बेसिस पे हमने सीसीटीवी और भी तरीकों को इस्तेमाल किया इस केस को डिटेक्ट करने में. फर्स्ट तरीका जो हमने इस्तेमाल किया बैच नंबर जो पैकेट पे हमें मिला था उस पैकेट के बैच नंबर को हम बैक ट्रैक करके जब हम सूरत आए तो हमें ये पता चला कि ये पैकेट जो है ये सेल्फोस का पैकेट 21 मार्च को सूरत में आया है. इस बैच के नंबर का पूरा जो पैकेट है फिर वहां से डीलर से सब डीलर से रिटेलर और रिटेलर से अलग अलग शॉप्स पे हमने जब बैक ट्रैक किया तो हम शॉप को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो शॉप पे कब आया वो पैकेट. फिर वहां से भी हमने जब सीसीटीवी देखना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि ये आदमी 31 मार्च को ये पैकेट लेने आया है यहाँ पे. तो हमें वहां से भी ये लगभग क्लियर हो गया था कि यही इन्वॉल्व है.
उसके बाद इससे हमने सीसीटीवी देखा तो ये 31 मार्च को रात को 9 साढ़े 9 बजे उस शॉप पे ये पैकेट लेने आता है और गूगल पे से ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि इसने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद दूसरी बात कि पहले तो हमें ये लग रहा था कि 1 घंटे का जो टाइम विंडो है, 1 घंटे का टाइम विंडो में किसी ने डाला और 1 घंटे में ये डिसॉल्व हुआ और ऐसा हुआ। लेकिन इसको हमने तपास करने के लिए हमने खुद ही ट्राई किया कि ये सेल्फॉस का पैकेट अगर पानी में अगर हम डालें, तो कितनी देर में स्मेल आएगा और कितनी देर में ऐसा जो स्मेल जिसका बहुत खराब सा स्मेल होता है, वो कितनी देर में आता है। तो लोकल जो डी स्टाफ है उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने खुद ही पानी में पैकेट डाल के देखा, तो उसे पता चला कि मुश्किल से 3 या 4-5 मिनट में ये स्मेल बहुत बुरा स्मेल आना शुरू हो जाता है और चारों तरफ ये बात पता चल जाएगी कि ये इसमें कुछ डाला हुआ है इस पानी में। तो इससे जो हमारा 1 घंटे का जो टाइम विंडो था उसको हमने शॉर्टन अप किया, उसको हमने 10 मिनट का टाइम विंडो किया कि डालते के साथ 10 मिनट के अंदर उसके आगे पीछे के 10 मिनट के विंडो में ही किसी ने डाला होगा तभी, नहीं तो ये तो सबको पता चल जाएगी। और वर्कर्स का जब स्टेटमेंट हमने लिया तो वो जब सुबह 8 बजे पानी पीने गए थे, तो उनको पानी में कोई स्मेल या फिर कोई टेस्ट में खराब नहीं नजर आ रहा था। तो 10 मिनट के टाइम विंडो में हमने जो उसके सीसीटीवी थे फैक्ट्री के अंदर, उसमें हमने ये चेक किया कि 10 मिनट में कितने लोग जो है वो पानी पीने जा रहे हैं और कौन कौन वापस आ रहा है। तो उसमें हमने नैरो डाउन किया, टोटल 3 या 4 लोगों को हमने नैरो डाउन किया, उससे चारों से इंट्रोगेशन की और चारों को मोबाइल हिस्ट्री भी चेक किया है हमने। और जो मोबाइल हिस्ट्री चेक करते समय ये जो आरोपी है निकुंज, इसके मोबाइल हिस्ट्री में गूगल सर्च हिस्ट्री में भी हमें ये मिला कि मेडिकल मतलब सेल्फॉस पाउडर का सर्च हिस्ट्री भी मिला और इसका क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन किया हमने, इंट्रोगेशन पीआई एमबी ओसुरा और जो डी स्टाफ है उसने पूरा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन करके जब हमने इससे पूछपरछ की तो हमें ये पता चला, इसने कबूला कि सर मैं बहुत दिन से जान देने की कोशिश कर रहा था, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये हरकत की है। और इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है, किसी किसी को बदनाम करने की वो बात नहीं है, मैं अपना जान खुद लेना चाहता था, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मैं डर गया और डर के कारण मैंने इसमें उसमें डाल दिया। और उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोग मर जाएंगे, इसलिए मैंने ये हंगामा स्टार्ट किया। तो इसके बिहाफ में मैं पूरा कापोद्रा पुलिस टीम को और पूरे सूरत सिटी पुलिस को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, क्योंकि ये केस ऐसा था जो कि हमारे को भी टेस्ट कर रहा था और बहुत ही कापोद्रा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही टूक समय में रिजल्ट तक हम आए। सर ऐसा मामला कभी पहले सामने आया है कि किसी ने ऐसा करके कि लोगों की जान लेने की कोशिश की हो या ऐसा? अभी हम इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी ने इसने जान लेने की कोशिश की है या नहीं की है। हाँ, इसका जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है और इसकी जो मूवमेंट हिस्ट्री है, वो सब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, किन लोगों के साथ ये उठता बैठता है, क्या करता है, किस तरीके का इसका है, इसका कोई माइंडसेट है कि नहीं, ये कि ये सिर्फ एक स्टोरी बना रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हम किसी चीज को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चल रहा है कि इसने अपनी जान लेने के लिए ये हरकत की है और इसमें ये दूसरों को मारना नहीं चाहता था। सर ये जान लेने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसको ऐसा क्यों लगा कि वो चीज पानी में इसको फेंकना चाहिए, कहीं और भी फेंक सकता था? नहीं, अगर आप जब आप उस फैक्ट्री को विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जहाँ पे कूलर रखा है वो एक बहुत छोटा सा कमरा है। उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक वाटर कूलर रखा हुआ है और उस वाटर कूलर में ऐसा है कि उसका जो टॉप लिड था, जिसपे ढक्कन था, वो ढक्कन उसका स्क्रू से टाइट नहीं था, वो ढक्कन हटा हुआ था। तो अगर कोई भी आदमी कहीं भी छुपा सकता है तो वो ऐसा ही कर सकता है कि ढक्कन हटा के अंदर डाल दिया और ढक्कन को बंद कर दिया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंस्टिंक्टिव एक्शन है, लेकिन अभी तपास के बाद ही हम पूरा क्लियर कर पाएंगे इसमें।